Friends, today we will read the Rowlatt Act. As you know, we have also read about the non-cooperation and the idea of Satyagraha and the First World War. You know the section is the First World War, Khilafat and non-cooperation. And in this section, we have also read about the idea of Satyagraha and now we will read the Rowlatt Act. Rallies were organized, various cities, workers went on strike in railway workshops and shops closed down, alarmed by the popular upsurge and scared that lines of communication such as the railways and telegraph would be disrupted. The British administration decided to clamp down on nationalists. Local leaders were picked up from Amritsar and Mahatma Gandhi was barred from entering Delhi. On 10th of April, the police in Amritsar fired upon a peaceful procession, provoking widespread attacks on banks, post offices, and railway stations. Martial law was imposed, and General Dyer took command. You know, we have also read the first section of the Rowlatt Act, and we know that the Gandhiji start with a hartal on 6th April and he was protested against the British government when the British government passed a Rowlatt Act. Rallies were organized in the various cities of our country and workers went on strike and railway shops, workshops and shops closed down on that day. Alarmed by the popular upsurge and scared that lines of the communications such as the railway and telegraph would be disrupted. As you know, when Gandhiji declared Hartal on 6th April and after that in the various cities of country rallies were organized and the workers has also strike and railway workshops and the shops closed down and the telephone communication lines and the railway and telegraph would be disrupted and the British administration decided to close down on nationalists. And after this incident, the British government decided to clamp down on the nationalists and the local leaders were picked up from the Amritsar and Gandhi barred from entering Delhi. So many incident was held during that time. On 10th April, the police in Amritsar fired upon a peaceful procession and provoking widespread attacks on banks, post office, railway stations. Martial law was imposed by the British government and General Dyer took command of this process. On 13th April, the infamous Jallianwala Bagh incident took place. On that day, a large crowd gathered in the enclosed ground of Jallianwala Bagh. Some came to protest against the government's new repressive measures. Others had come to attend the annual Baisakhi fair, being from outside the city. Many villagers were unaware of the martial law that had been imposed. Dyer entered the area, blocked the exit points, and opened fire on the crowd, killing hundreds. His object, as he declared later, was to produce a moral effect, to create in the minds of Satyagraha a feeling of terror and awe. As the news of Jallianwala Bagh spread, crowds took the street. In many North Indian towns, there were strikes, clashes with the police, and attacks on government buildings. The government responded with brutal repression, seeking to humiliate and terrorize people. Satyagrahi were forced to rub their noses on the ground, crawl on the streets, and do salute to all sahibs. People were flogged, and villages around Gujranwala in Punjab, now in Pakistan, were bombed. Seeing violence spread, Mahatma Gandhi called off the movement. We have also read about the momentum of the massacre. And after the implementation of Rowlatt Act in all over the country, protests were organized and the Gandhiji started the protest against the government on 6th April and on 10th April
द पुलिस इन अमृतसर फायर्ड अपॉन अ पीसफुल प्रोसेशन एंड ऑन 13th April इन फेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस। बेसिकली जो हमने अभी तक पढ़ा, इसमें हमने पढ़ा कि ये जो शुरुआत हुई वो कब से हुई, रॉलेट एक्ट से हुई, क्योंकि 6 अप्रैल 1919 को गांधी ने निश्चय किया था कि रॉलेट एक्ट का विरोध करना है, जो कि एक साम्राज्यवादी जो अंग्रेजी सरकार थी उसने जो है इस प्रकार का एक कानून बनाया था जो कि भारत के जो पॉलिटिकल लीडर्स थे या उनका जो विरोध कर रहे थे उनको बिना किसी अपील, बिना किसी दलील वाला के ही उन्हें जेल में डाल दिया जाता था। तो इसका विरोध करने के लिए गांधी ने निश्चय किया और 6 अप्रैल 1919 को उन्होंने हड़ताल की घोषणा की। पूरे देश के अंदर रैलीज़ को ऑर्गेनाइज़ किया गया, सभी वर्कर्स स्ट्राइक पर चले गए, रेलवे वर्कशॉप्स और शॉप्स को बंद कर दिया गया। और ये इसका प्रभाव ये हुआ कि जो कम्युनिकेशन सिस्टम था रेलवे का, टेलीग्राफ, उसको भी डिस्टर्बेड किया गया। ब्रिटिश जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो ब्रिटिश प्रशासन था, उसने ये निश्चय किया, ये डिसाइड किया कि जो नेशनलिस्ट हैं, जो राष्ट्रवादी लोग हैं, उनको अरेस्ट करना है और उनको जेल में डालना है। तो जो लोकल लीडर्स थे उनको पकड़ा गया, इनमें अमृतसर से कुछ लोगों को पकड़ा गया था। महात्मा गांधी को दिल्ली में प्रवेश करने से रोक दिया गया। 10 अप्रैल को पुलिस ने एक शांतिपूर्वक जो एक धरना चल रहा था उसके ऊपर जो है पुलिस ने गोलियां चला दी। उसके बाद जो है एक दंगा भड़का और बैंक्स, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशंस, इन सब के अंदर जो है काफ़ी लॉस हुआ। उसके बाद जो है मार्शल लॉ को इम्पोज किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा और इसकी जो कमांड कर रहे थे वो थे जनरल डायर। जनरल डायर के बारे में आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, आपने नाम भी सुना होगा, क्योंकि जनरल डायर को जाना जाता है उन्होंने जलियांवाला बाग में निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवाई थी। उसके लिए उनका इतिहास में नाम जो है काफ़ी फेमस है और उनका जो नाम है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़ा हुआ है। 13 अप्रैल को जो है जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था और इस दिन बहुत बड़ा क्राउड जो है वो एक एनक्लोज्ड ग्राउंड था जलियांवाला बाग का, एक चारों तरफ से जो बंद मैदान था उसमें सभी लोग इकट्ठा हुए थे। इकट्ठा होने का कारण क्या था, क्योंकि पंजाब के 2 लीडर्स थे, उनमें एक सैफुद्दीन किचलू थे और डॉक्टर सतपाल सिंह, उन दोनों को ब्रिटिश पुलिस ने जो है गिरफ्तार कर लिया था। तो उनकी गिरफ्तारी के विरोध में बहुत सारे लोग जो है वो जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे। उसी का मौका पा कर के, क्योंकि वो शांतिपूर्ण रूप से वहाँ धरना दे रहे थे और जैसे हमने बताया आपको पहले कि सत्याग्रह है ना, तो सत्याग्रह के साथ ही वो लोग जो है सरकार के समक्ष अपनी डिमांड्स रख रहे थे। तो जलियांवाला बाग जो है वो पूरे चारों तरफ से क्या था, वो क्लोज डाउन था। तो जलियांवाला बाग में जो क्राउड इकट्ठा हुआ था और वो जलियांवाला बाग जो है वो चारों तरफ से एक एनक्लोज्ड ग्राउंड था। तो कुछ जो है जो प्रोटेस्टर थे जो कि गवर्नमेंट्स का विरोध कर रहे थे, तो वो जो प्रोटेस्टर थे उनको दबाने के कुछ मेजर्स लिए गए, ठीक है। और उस समय जो है एनुअल वैसाखी फेयर होता था तो उसको लोग अटेंड कर रहे थे। तो उसी समय क्या है जो कि आउटसाइड द सिटी हो रहा था, बहुत सारे जो विलेजर्स थे उसके खिलाफ जो अनअवेयर थे, उनको जानकारियाँ नहीं थी कि मार्शल लॉ इम्पोज्ड है, तो उसके बारे में उनको जानकारियाँ नहीं होती थी। तो डायर ने उस एरिया में प्रवेश किया और जो एग्जिट पॉइंट्स उनको सबको क्लोज कर दिया गया और उनके ऊपर, क्राउड के ऊपर फायर को ओपन कर दिया गया, ठीक है। तो जनरल डायर ने जब क्राउड के ऊपर फायर ओपन करने का आदेश दिया तो उसमें जो है सैकड़ों लोगों की जो है मौत हो गई। उसका उद्देश्य ये था, बाद में उसने इसकी घोषणा भी की कि सत्याग्रहियों के दिमाग में एक फीलिंग ऑफ टेरर को क्रिएट करना था, जिससे उनके अंदर एक भय उत्पन्न हो। जैसे ही ये समाचार, जलियांवाला बाग का समाचार जो है भीड़ के बीच में फैला, तो भारत के जो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स थे, जो नॉर्थ इंडियन जो टाउन्स थे, वहाँ पर ये काफ़ी तेज़ी से फैला। वहाँ लोगों ने स्ट्राइक्स के क्लैशेज हुए पुलिस के बीच में और उनके बीच में, और लोगों ने जो है गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर अटैक भी किए, ठीक है। और सरकार ने उसको काफ़ी जो है ब्रूटल तरीके से उसको दबाने के लिए रेस्पॉन्ड किया और लोगों को टेरराइज़ किया। उनको जो है एक तरीके से बहुत ही उनके साथ ब्रूटल जो है बिहेवियर किया गया। और सत्याग्रही जो कि उसका सरकार का विरोध कर रहे थे, उन्हें नाक केबल ग्राउंड पर उनके नाकों को रगड़वाया गया और एक तरीके से, और
जो है उन्हें सैल्यूट करने के लिए मजबूर किया गया, साहिब कहने के लिए मजबूर किया गया, और लोग जो गाँव में रहते थे। तो ऐसा ये घटना है गुजरावाला पंजाब में है, जो अभी वर्तमान पाकिस्तान में है। वहाँ पर बॉम्ब भी किए गए, यानी कि बॉम्ब भी फेंके गए एक तरीके से। तो ये जो वायलेंस था वो पूरी तरह चारों तरफ फैल चुका था। तो गांधी जी ने मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ किया। वाइल द रोलेट सत्याग्रह हैड बीन अ वाइड स्प्रेड मूवमेंट इन वॉज स्टिल लिमिटेड मोस्टली टू सिटीज़ एंड टाउन्स, है ना। जबकि जो रोलेट सत्याग्रह था वो एक तरीके से अगर हम देखें तो काफ़ी वाइड स्प्रेड मूवमेंट था, और वो एक लिमिटेड नहीं था, वो सिटीज़ और अधिकतर शहरों और टाउन्स में काफ़ी जो है सीमित था एक तरीके से। और गांधी ने अब ऐसा महसूस किया कि अब उनको एक आवश्यकता है कि वो एक बड़ा मूवमेंट जो है भारत में शुरू करें, जिससे कि लोग उससे जुड़ सकें और जिसमें हिंदू मुस्लिम साथ आएँ। और उसके लिए उनको लगता था कि खिलाफत जो है उस समय एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इश्यू था। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था और जिसमें ऑटोमन टर्की की हार हुई थी, तो उसके बाद जो है एक र्यूमर्स जो फैला था, और उस र्यूमर्स के कारण जो है ऑटोमन जो एम्परर था, जिसको लोग खलीफा कहते थे, तो उस खलीफा के प्रति पूरे विश्व में के जो मुस्लिम समुदाय था वो उनका रेस्पेक्ट करते थे। तो भारत में भी बहुत सारे मुसलमान उस समय थे जो कि फ्रीडम स्ट्रगल में भी पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो हिंदू मुस्लिमों को साथ लाने के लिए गांधी ने खिलाफत मूवमेंट का भी सपोर्ट किया, और उन्होंने मार्च 1919 में बॉम्बे में जो है कि जो खिलाफत कमेटी बनाई गई थी, इसके जो यंग जनरेशन थी उसमें जो मुस्लिम लीडर्स हुए उनमें दो भाई थे, मोहम्मद अली और शौकत अली, began discussing with महात्मा गांधी about the possibility of united mass action on the issue। तो खिलाफत के मुद्दे पर जो है गांधी ने इन दोनों को सपोर्ट भी किया। ये दोनों जो भाई जो खिलाफत मूवमेंट को लीड कर रहे थे, उनका सपोर्ट गांधी जी ने किया, जिससे कि हिंदू मुस्लिम एकता को जीवित रखा जा सके। क्योंकि अगर ब्रिटिश सरकार से लड़ना था तो ब्रिटिशों से लड़ने के लिए हिंदू मुस्लिमों का एक साथ आना बहुत ही आवश्यक था। गांधी जी saw this as an opportunity to bring Muslims under the umbrella of a unified national movement। गांधी ने देखा कि यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपॉर्चुनिटी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है, जिसमें मुस्लिम्स को और हिंदुओं को एक ही अम्ब्रेला के नीचे ला करके, एक ही छाता के नीचे ला करके जो है एक यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट को आगे जो है बढ़ाया जा सकता है। At the Calcutta session of the Congress in September 1920, he convinced other leaders of the need to start a non-cooperation movement in support of Khilafat as well as for Swaraj। तो कलकत्ता का जो सेशन हुआ कांग्रेस का सितंबर 1920 में, ठीक है, तो उसमें गांधी ने जो है लीडर्स को कन्विंस किया, और क्योंकि वो एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट प्रारंभ करना चाहते थे जिसकी आवश्यकता थी, तो उन्होंने कहा कि खिलाफत का भी सपोर्ट करना आवश्यक है, तभी हमें स्वराज मिलेगा। क्योंकि स्वराज प्राप्त करने के लिए जब तक हिंदू और मुस्लिमों के बीच में एकता नहीं होगी, दोनों के बीच में एक यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट नहीं बनेगा, तब तक हम सफलता अर्जित नहीं कर सकते हैं, ऐसा गांधी मानते थे। तो इसलिए गांधी ने कलकत्ता अधिवेशन में प्रस्ताव रखा था कि हमें एक ऐसा मूवमेंट जो है वो शुरू किया है। मूवमेंट तो 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हो गया था, है ना। इसके बारे में आगे आपको बताऊंगा, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में। इट वाज स्टार्टेड ऑन 1 अगस्त 1920, ओके, 1 अगस्त 1920 को जो है इसकी शुरुआत हो गई थी। लेकिन उसको जो एक तरीके से जो अप्रूवल मिला वो सितंबर 1920 को मिला था कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। तो उसके बाद कांग्रेस भी जो है उसमें सपोर्ट में आ गई थी। कांग्रेस ने भी जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सपोर्ट किया। वाई नॉन कॉपरेशन, है ना, असहयोग क्यों? ये असहयोग वर्ड आया कहाँ से? असहयोग की जो परिभाषा है या असहयोग को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इन हिज बुक हिंद स्वराज, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक ऑफ महात्मा गांधी, ओके। हिंद स्वराज, जब आप हिंद स्वराज के बारे में पढ़ते हैं तो हिंद स्वराज जो है वो गांधी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब थी, जो गांधी जी ने 1909 में लिखी थी। महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड दैट ब्रिटिश रूल वाज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया विद द कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस। गांधी ने ये घोषित किया कि जो ब्रिटिश शासन है
है ना, वो भारत में जो है भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ है। क्योंकि भारतीयों के सहयोग से कैसे स्थापित हुआ था, वो इसलिए हुआ क्योंकि ब्रिटिश जो है वो एक कंपनी के रूप में आए व्यापार करने के लिए, ठीक है ना, और व्यापार करने के बहाने से भारत में उन्होंने प्रवेश किया और धीरे धीरे वो भारत की सत्ता पर क्या हो गए, काबिज हो गए। तो कोई व्यक्ति जो व्यापारी है वो व्यापार करने के उद्देश्य से देश में आया है और वो सत्ता तक कैसे पहुंचा, तो उसमें कहीं ना कहीं भारतीयों का सहयोग रहा होगा। इसी कारण से जो है सहयोग रहा, इस कारण से उन्होंने सत्ता पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। एंड इट सर्वाइव्ड ओनली बिकॉज ऑफ दिस कॉपरेशन। इफ इंडियंस रिफ्यूज टू कॉपरेट, ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड कोलैप्स विद इन अ ईयर एंड स्वराज वुड कम। गांधी का मानना ये था कि अगर भारतीय लोग जो अभी ब्रिटिश सरकार के साथ कॉपरेट कर रहे थे, है ना, अब तक कॉपरेट कर रहे थे, उसको सहयोग कर रहे थे, यदि भारतीय उनका कॉपरेशन छोड़ दें, है ना, या इनकार कर दें, तो जो ब्रिटिश रूल है भारत में वो क्या हो जाएगा, ढह जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है, और 1 साल के अंदर ही हम लोग स्वराज प्राप्त कर लेंगे, ऐसा उनका मानना था, क्योंकि हमें आज़ादी मिल जाएगी। हाउ कुड नॉन कॉपरेशन बिकम अ मूवमेंट, है ना, तो जो नॉन कॉपरेशन था, जो असहयोग था, वो कैसे जो है एक आंदोलन बना। गांधी जी proposed that the movement should unfold in stages. It should begin with the surrender of titles that the government awarded and a boycott of civil services, army, police, court and legislative councils, schools and foreign goods. Then, in case the government used repression, a full civil disobedience campaign would be launched through the summer of 1920. Mahatma Gandhi and Shaukat Ali toured extensively, mobilizing popular support for the movement. तो जो आंदोलन था नॉन कॉपरेशन, जो नॉन कॉपरेशन था वो मूवमेंट कैसे बना, प्रश्न ये है। तो गांधी जी ने जो प्रपोज किया कि मूवमेंट जो है वो अनफोल्ड नहीं होना चाहिए, है ना, अनफोल्ड नहीं होना चाहिए, इसको आवश्यकता है कि इसकी शुरुआत कैसे हो। तो शुरुआत करने के लिए सबसे पहले जो गवर्नमेंट ने जो बड़े बड़े लीडर्स थे या बड़े बड़े जो लोग थे उनको जो अवार्ड दिए थे, उनकी अवार्ड वापसी हुई। सिविल सर्विसेज का बॉयकॉट किया गया, आर्मी, पुलिस, कोर्ट, लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल, फॉरेन गुड्स, इन सब का क्या किया गया, बॉयकॉट किया गया, उनका बहिष्कार किया गया। बॉयकॉट से मतलब है उनका बहिष्कार किया गया। देन उसके बाद क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने जो है उनको दबाने का प्रयास भी किया और एक जो फुल सिविल डिसोबीडियंस जो कैंपेन जो लॉन्च किया गया था 1920 की गर्मियों में, गांधी के और शौकत अली ने जब एक बहुत बड़ा टूर किया था, एक भ्रमण किया था पूरे देश के अंदर मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए, ना, क्योंकि पॉपुलर एक सपोर्ट मिला लोगों के बीच में, उसको जो लोगों को मोबिलाइज किया गया, जिससे लोग उसके सपोर्ट में आए। लोगों को एक तरीके से जागरूक करना, जगह जगह रैलियाँ करना, धरने देना, प्रदर्शन करना, जिससे कि लोगों के बीच में एक जागरूकता पैदा हो। मैनी within the Congress were however concerned about the proposals. They were reluctant to boycott the council elections scheduled for November 1920 and they feared that the movement might lead to popular violence. In the month between September and December, there was an intense tussle within the Congress. For a while, there seemed no meeting point with the supporters and the opponents of the movement. Finally, at the Congress session at Nagpur in December 1920, a compromise was worked out and the non-cooperation programs was adopted. How did the movement unfold? Who participated in it? How did different social groups conceive of the idea of non-cooperation? So many questions are given here and we will discuss about that in the next section. But before that, we need to understand बहुत सारे जो कांग्रेस के जो मेंबर्स थे उनके साथ जब कंसर्न हुआ, उनके सामने जब प्रपोजल्स रखे गए तो उन्होंने इसको रिलेक्ट किया और उसका बॉयकॉट किया। वही काउंसिल इलेक्शन होने थे जिनका एक शेड्यूल बना हुआ था नवंबर 1920 में, तो उससे डरे हुए थे कि जो मूवमेंट है वो कहीं एक वायलेंस का रूप ना धारण कर ले, हिंसा का रूप ना अपना ले। तो सितंबर से लेकर दिसंबर के मध्य जो है कांग्रेस के बीच में और उस मूवमेंट को जो लीडर्स थे उनके बीच में काफ़ी एक टसल भी रहा। और ये भी देखा गया कि जो मीटिंग पॉइंट था उसमें जो सपोर्टर्स थे और जो अपोनेंट्स थे मूवमेंट के, जो मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे और जो मूवमेंट का विरोध कर रहे थे, ठीक है ना, उनके बीच में मीटिंग हुई और फाइनली जो कांग्रेस का सेशन हुआ नागपुर में दिसंबर 1920 में, उनमें उनके बीच में एक कंप्रोमाइज़ हुआ, एक समझौता हो गया
और नॉन कोऑपरेशन जो प्रोग्राम था, एक जो असहयोग कार्यक्रम था, उसको अपना लिया गया, अडॉप्ट कर लिया गया। ठीक है। हाउ डिड द मूवमेंट अनफोल्ड, यानी मूवमेंट जो है वो अनफोल्ड कैसे हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड हु पार्टिसिपेटेड इन, इसमें किसने हिस्सा लिया। हाउ डिड डिफरेंट सोशल ग्रुप्स कंसीव ऑफ द आइडिया ऑफ नॉन कोऑपरेशन। ठीक है। सो मैनी क्वेश्चंस रेज्ड हियर, so we will discuss about these questions in the next section. Okay.